Inauguration of the new campus, Bismillah Nagar, Bannerghatta Road. Yes, my dear friends, today is not merely the opening of new premises, but the start of nurturing knowledge, values, and tomorrow's leaders. With Allah's help, small beginning turn into great realities. Education become a meaningful when learning stays speak for themselves. Education is best understood when it is experienced. On this moment, warm and respectful welcoming to honorable chief guest, respected guests of honor, estimated parents and students, member of the Brain Stars family. Esteemed parents, dear students, and members of Brain Star family, praise is due to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who transforms sincere intentions into meaningful realities. Today marks a blessed milestone as we gather to witness from vision to reality the inauguration of the Brain Star School, Bannerghatta Road campus. Allah says in Quran and says, "My Lord, increase me in knowledge." With this beautiful intention, let us begin today's proceeding. Every noble beginning is incomplete without the remembrance of Allah. To seek Allah's blessing, we began with the recitation of Holy Quran. I respectfully invite Rehan Ahmad of grade 9 to begin this auspicious ceremony with the recitation of Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحان العليم الحكيم قال يا آدم لما أنبأهم بأسمائهم Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Respected chief guests, honorable guests of distinctions, esteemed parents, dear students, and dedicated members of the Brave Stars family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be upon you all. All praise is due to Allah, the Lord of all worlds, who has blessed us with a noble gift of knowledge and guided us to serve humanity through education. It is indeed a moment of immense joy and gratitude to welcome you all on this occasion as Brave Stars International Holistic Montessori and School proudly inaugurates its fourth branch. Allah beautifully reminds us in the Quran. Allah will raise those who have believed among you and those who have given knowledge by many degrees. Today stands as a testimony to this divine promise as we gather to celebrate a milestone rooted in education, values and service to society. On behalf of the management, principal, teachers and students of Brave Stars, it is my privilege and honor to extend a warm and heartfelt welcome to each one of you. The strength and unity of our extended school family. It is my proud privilege to welcome our esteemed chief transformation and accreditation. Having conducted over 100 faculty. Dear audience, please give a big round of applause. Sir, the Secretary of the MESCO Group, Hyderabad. Dr. Iftihar Ahmed Sir is a visionary educationist and a strong advocate of inclusive and values-based education. Okay. A distinguished academician, administrator and healthcare leader. Dr. Sheikh Alauddin has made a remarkable foreign artist. Thank you, sir. Stars Kalyandu. Sir, your vision, dedication and unwavering commitment to nurturing young minds have been the foundation of Brave Stars' growth and success. Now I request our Chief Administrator, Zulfikar Ahmed Sir, to kindly present. Honorable Chairman, Dr. D. Haider Ali Sir, a visionary entrepreneur, legal professional, philanthropist and the guiding force behind Brave Stars International School. His commitment to empowering Thank you, sir. Chairman of Brave Stars Group of Institution, a software engineer by profession and the founder of My School Institution across Bangalore. His strategic vision and technical expertise continue to strengthen the foundation of our institution. Administration with
professionalism, positivity, and a thoughtful leadership approach that nurtures a vibrant and harmonious work environment. We welcome you, sir. I will do. Look, sir, start, sir. Yes, program. Our teacher, Arabic, had to take us through the presentation. Over to you, dear sir. अमरी वाहिल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर जब एंड मॉन्टेसरी स्कूल के तहत QGD प्रोग्राम यानी कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक 5 साला यूनिक तालीमी व तरबियती प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को कुरान के नूर और उसकी रोशनी से रोशन करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया जाएगा, कुरानिक लैंग्वेज को सिखाया जाएगा, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इस्लामिक हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स को इस प्रोग्राम के जरिए से पढ़ाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ बच्चों को कुरान पढ़ाना या हाफिज़ कुरान बनाना नहीं है, बल्कि प्रोग्राम को अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसका मतलब कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात ये है कि हमारा और कुरान का जो रिश्ता है वो इतना कनेक्शन वीक हो गया है कि आज हमने कुरान की तालीमात से हमने दूरी इख्तियार कर ली, कुरान के सिस्टम को हम करने से हमने दूरी इख्तियार कर ली। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे घरों के अंदर बेचैनियां हैं और हमारे नौजवान गुमराहियों के शिकार हो गए हैं। आज मुसलमान का नाम लिया जाता है तो ड्रग्स, मुसलमानों का नाम लिया जाता है तो नशा की चीज़ों के अंदर मुब्तला है, मुसलमानों का नाम लिया जाता है तो अखलाक और किरदार के अंदर गिरावट नजर आती है, मुसलमानों का नाम लिया जाता है तो तुहू शत्रुल ईमान तो है लेकिन उस पर हमारा अमल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, इस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए ब्रेन स्टार्स के अंदर कुरानिक प्रोग्राम में एडमिशन लेकर इस प्रोग्राम को कंप्लीट करता है तो सबसे पहले इसकी जो ability to recite the Quran with proper tajweed, number 2 to become Hafiz Quran, number 3 ability to read and understand the Quran, number 4 understanding the Shan Nuzul of each surah, every surah becomes an ambassador. अल्लाह उसके रसूल के नाम से अगर वो बचपन से मानूस हो रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल का नाम कुरान की आयतें हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत साहिब किराम के नाम के कारनामे बच्चों के जहन नशीब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनका दीन और ईमान पुख्ता हो जाएगा और वो नबूज़ के जहन और दिमाग पर पूरी ज़िंदगी आखिरी दम तक जब तक वो दुनिया में रहेंगे वो कायम रहेंगे और उसी की बेस और बुनियाद पर इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब और सुरखरू होंगे। समय मौलाना ब्रेनी स्टार में जो तालीम का निज़ाम कायम किया गया है, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ब्रेन स्टार की तहरीक जिस दिन से शुरू हुई उसी दिन से किसी न किसी दर्जे में इससे जुड़ा रहा हूँ। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जनाब डी हैदर वली साहब, शुरू ही से अल्हम्दुलिल्लाह
और मौके पर याद करते हैं, राय मशवरा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ, पहले 12-13 साल से जो स्कूल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मॉन्टेसरी है, प्राइमरी है, हाई स्कूल तक भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहुँचा है। तो शुरू ही से ब्रेन स्टार की जो बुनियाद है, उसका जो मकसद है वो यही है कि हमारे कौम के बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता किया जाए। असल मकसद वही है कि बच्चों का दीन और ईमान मजबूत हो जाए, आज के माहौल में वो गलत रास्ते पर न चले जाएं। आज जो आप माहौल देख रहे हैं मुल्क में, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी का, पर्पसली प्लानिंग के साथ कोशिश हो रही है मुस्लिम बच्चों को, बच्चियों को उन रास्ते से हटाने की, भटकाने की, उनकी दिल और ईमान की जो दौलत है उसको छीनने की प्लानिंग हो रही है बाकायदा। तो ऐसे माहौल में ये ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी कौम के जो अमायदीन हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो सब हजरात मिलकर अपने तालीमी इदारे कायम करें और ऐसे तालीमी इदारे हों जिनमें असरी तालीम भी मयारी हो, इंग्लिश मीडियम का मयारी इंतज़ाम हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, उसके साथ साथ दीनी तालीम और तरबियत का भी भरपूर इंतज़ाम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेन स्टार शुरू ही से उसी लाइन पर है। और अब एक नया प्रोग्राम जो शुरू किया है, कुरानिक जनरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी को ये आगे बढ़ाने की कोशिश है कि जिसमें कुरानी तालीम भी अच्छी मयारी हो, तजवीद के साथ हो और हिफ्ज़ का भी इंतज़ाम हो बच्चों के लिए, और उसके साथ साथ कुरान की तिलावत के साथ साथ हिफ्ज़ के साथ साथ कुरान फहमी का भी कोर्स हो, कुरान फहमी हो, कुरान के मानी और मतलब उसकी तफसीर का इल्म हो। तो बच्चे एक साथ ही, जहाँ वो एक तरफ हाई स्कूल तक पहुँचेंगे तो वहीं वो इंशाअल्लाह हाफिज़ भी होंगे, आलिम भी होंगे, और हाफिज़ और आलिम बनने के साथ साथ उनकी तरबियत भी इस्लामी नहज पर, इस्लामी तर्ज पर हो चुकी होगी। तो एक बेहतरीन पक्के मोमिन मुस्लिम भी होंगे, हाफिज़ भी होंगे, आलिम भी होंगे, और दुनियावी लाइन में भी फिर आगे जहाँ भी वो जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो इंशाअल्लाह वो कौम का, मिल्लत का नाम भी रोशन करेंगे और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में भी वो उनकी ज़िंदगी जो होगी ईमान वाली होगी, दुनिया और आखिरत में कामयाब सुरखरू होंगे। वालिदैन के लिए भी दुनिया में भी नेक नामी का ज़रिया बनेंगे और आखिरत में भी नजात का वसीला और ज़रिया बनेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी गुजारिश है आसपास में बिस्मिल्लाह नगर और आसपास के इलाके के जो हमारे बिरादरान इस्लाम हैं कि इस सुनहरे मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों को, बच्चियों को इसमें दाखिल कराएं और उनके दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का, बेहतरीन तालीम और तरबियत का तोहफ़ा अपनी नस्लों को दें। अल्लाह करे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को अल्लाह कामयाब फरमाए, कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक बख्शे, आमीन। अब्दुल सत्तार कासमी, जयनगर ईदगाह मस्जिद फोर्ब्लॉक में अल्हम्दुलिल्लाह 26-27 साल से इमाम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। खुतबा भी है जुमे का अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह के जो इदारे होते हैं उनमें भी जहाँ जो मुमकिन हो सकता है ताउन करने की, साथ देने की कोशिश करते हैं, हौसला अफजाई की कोशिश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। एक ये नया ब्रांच खोले स्कूल का, ये एक माइलस्टोन नहीं है वली साहब, जो है ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आज आपको डिक्लेयर करना है कि आप करने क्या वाले हैं। क्या आप एम्प्लॉइज बनाने वाले हैं, बच्चे जाके मुलाजिमत करने वाले हैं, या फिर यू आर गोइंग टू शेप द माइंड्स द वे यू आर सेइंग दैट नर्चरिंग लीडर्स, राइट। हमारे जो बच्चे हैं, एक्चुअली हमारी जो कौम है, अल्लाह ताला हैज प्रॉमिस्ड अस इन कुरान, राइट। सूरह नूर में, आई मीन मुफ्ती साहब कैन करेक्ट मी, Allah Ta'ala has mentioned that you bring iman and we'll make you the leaders of the world. He says ईमान लेके आओ। ईमान की पहली क्या है? What is the first शराइत of ईमान? चलिए अल्लाह पे ईमान रखना है। आधा ईमान क्या है? Is cleanliness. How do we learn the cleanliness? It is through education, right? See, education, Allah Ta'ala said, read and understand. That was the first thing. Allah Ta'ala didn't say कि भाई तुम जाओ तलवार उठाओ। अल्लाह ताला ये नहीं बोले कि आप जाके क्या है लोगों को पढ़ाओ। अल्लाह ताला बोले खुद पढ़ो पहले। इकरा पहला लफ्ज था, इकरा, दैट मीन्स रीड, राइट। खुद नहीं पढ़ेंगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे,
राइट। तो इसके 3-4 अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मैं सोचा कि आई कैन प्रेजेंट दैट, राइट, कि अर्ली एजुकेशन जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं आज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई इज अर्ली एजुकेशन, किस लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आपको समझना है अर्ली एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको चुन छाट के अल्लाह के नबी की जिंदगी और सहाबा की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की जिंदगी में अर्ली एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। अल्लाह के नबी की तालीम जो थी, अल्लाह के नबी को जब कुरान रिवील हुआ, उनकी उम्र जो है 40 साल के ऊपर थी। 40 साल, कैन यू इमेजिन अ 40-year-old मैन, राइट। आई ऑलवेज कॉल हिम द ग्रेट अरब, राइट, आई मीन मेरी वो आदत है। 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ऐसा जो है इल्म देके गए कि इट कैन एनलाइटन अ स्मॉल चाइल्ड टू द ओल्डेस्ट ऑफ द पर्सन, राइट। तो आई टेल यू व्हाट हैपेंड, राइट। अर्ली एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि स्कूल को भेज दिए, एक सिलेबस है वो पढ़ के जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा अल्फाज नीचे जो है, जो भी मोहतरमा जो थे समझा रहे थे, हम ना ब्रेनी स्टार्स क्या करते हैं, वो बोले अखलाक के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, बच्चों के अखलाक। अभी मेनी टाइम्स हम लोग मैं जब गवर्नमेंट में था, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उस टाइम में बहुत सारे लोग पूछते थे, अरे आप लोग बैठ के पानी क्यों पीते भाई बोल के। आई मीन द आंसर इज दैट इट इज सुन्नत। उसके मेडिसिन क्या बोलते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं, हाउ मच इट इम्पैक्ट्स ऑन योर ब्लैडर, हाउ मच इट इम्पैक्ट्स ऑन योर माइंड एज वेल, ये कोई समझाने के लिए आपको जो है यू हैव टू गो एंड गेन नॉलेज। अभी स्कूल की बात, आई विल जस्ट टेल यू अर्ली एजुकेशन के बारे में। अल्लाह के नबी की एक सुन्नत थी, जब भी किसी बच्चे को देखते हैं कि उसमें काबिलियत है, तो अल्लाह के नबी जो है उसको ऐसा काम देते, उसकी काबिलियत के आगे नजर आता, बट लेकिन वो फुलफिल कर देते हैं। सो सब लोग सुन के हैं हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में, ही इज नोन एज द लिंग्विस्टिक सहाबा, राइट। तो महज उनकी उम्र 12-13 साल थी। तो अल्लाह के नबी जब मदीने गए तो उन्होंने पूछे कि भाई आप में से कौन लिख सकता है और पढ़ सकता है। तो ये नौजवान खड़े हो गए, नौजवान भी नहीं थे, बच्चे थे, खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं बोल के। तो अल्लाह के नबी बोले ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाके जो है अभी हिब्रू और सीरियक सीखो। क्यों? क्योंकि यहूद और नसारा के साथ हमारा मुतालबा होता था, क्या होते थे, हमारे एग्रीमेंट्स होते थे। तो वो उसके वास्ते अल्लाह के नबी के क्या थी, इसमें देखिए हिकमत अमली क्या थी कि भाई वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर नॉलेज, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ट्रांसलेशन। इसीलिए ही क्रिएटेड अ इन हाउस इकोसिस्टम। आवर कम्युनिटी एक्चुअली हैज दैट inheritance of knowledge directly from Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I'll tell you, I mean Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu, he became the chief transcribe of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, कि जो कुछ भी होता अल्लाह के नबी उन्हीं से लिखा पढ़ाई कराते, राइट। इसका ये रिजल्ट अब नहीं आता, एक्चुअली इसका रियल रिजल्ट कब आया कि अर्ली एजुकेशन जब दिए अल्लाह के नबी जो है दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी जंग हुई, जंग यमामा, हजरत अबू बकर के जमाने में। उसमें 700 से ज्यादा हुफाज इकराम जो है शहीद हो गए। तो उस वक्त जो है, उस वक्त खलीफा वक्त जो थे हजरत अबू बकर, तो ही डिक्टेटेड, ही सेड के द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसक्राइबिंग द होली कुरान द वे वी सी, आज जो बच्चे आके पढ़ रहे थे, दैट वाज गिवन टू दैट यंग मैन हु इज ज़ैद इब्न साबित। इसका व्हाट द रिजल्ट व्हिच वाज क्रिएटेड, जो ये रिजल्ट बना, इसका मतलब ये था कि भाई अल्लाह के नबी अर्ली एज में बच्चे के ऊपर भरोसा करें, उसे तालीम दिए, और अल्लाह के नबी की वफात के एक अरसे के बाद जो है वो क्या करें, he became the person who has preserved the Quran for us today, the chief transcribe, right। ये एक्चुअली अर्ली एजुकेशन का बहुत एग्जांपल है। नॉट जस्ट मेन, यानी मर्द हजरात ही नहीं, औरतों का भी द बिगेस्ट एग्जांपल। आप कोई बता सकते हैं कि अगर बड़े सहाबा को कोई जो थी जरूरत पेश आती तो किसके पास जाते थे? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। मैं छोटी उम्र में उनकी तालीम शुरू हो गई थी। शी डिडंट लर्न हाउ टू बाय हार्ट थिंग्स, राइट। उन्होंने ये नहीं सीखे कि भाई मैं रट्टा मार के कैसा ये वापस आगे बढ़ाऊं। उन्होंने जिंदगी समझे, अल्लाह के नबी की आदतें समझे और दुनिया तक लेके आए। 2000 से ज्यादा हदीसें हैं जो उनके थ्रू हम तक पहुंची हैं, राइट। सो व्हेन a man is educated, a single person is educated. When the woman is educated, the entire family is educated, right? So Islam has that very important. तो एक ऐसा दौर आया बहुत जल्दी, एक ऐसा दौर आया कि बहुत सारे खराबियां हो गई। बनु उमैया जो थी, राइट, बनु उमैया के जो खलीफा थे, तो चलिए आई मीन वो हिस्ट्री है, लेकिन उनके बीच एक ऐसे खलीफा है हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज। वेरी शॉर्ट वाइल ही वाज देयर एज खलीफा, राइट, बट what impact he created on the world. People write books about his character, his administration,
and the reforms he brought in, right? So I think mic नहीं है अभी, शायद बात दूर तक पहुंच नहीं रही, तो I'll try to keep it short. But in India right now we are in a very exciting time. एक बहुत बेहतरीन टाइम है हमारे बच्चों के लिए, हमारे हायर एजुकेशन के लिए, जहां से मैं आता हूं। जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, तो मेरी खुशकिस्मती थी कि आई वर्क विद द ड्राफ्टमैन ऑफ NEP 2020, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। जब वो कर्नाटका नॉलेज कमीशन के चेयरमैन थे, आई वॉज इन हिज टीम। तो हम लोग, आई वॉज हेडिंग द प्रोजेक्ट ज्ञान संगमा एज अ चीफ आर्किटेक्ट फॉर द स्टेट। तो वहां पे एक बात होती थी हमारी थी, यूज्ड टू ऑलवेज यूज द वर्ड होलिस्टिक। जब मैं ब्रेनी स्टार से भी जब कनेक्ट हुआ पहली बार, इट वाज बिकॉज ऑफ द वर्ड होलिस्टिक ओनली। होलिस्टिक का मतलब है कि भाई एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, एक अल्फाज यूज करते हैं, पैराडाइम शिफ्ट। इट इज लाइक डिस्ट्रॉइंग समथिंग विच इज ओल्ड एंड मूविंग टुवर्ड्स something very new. So the NEP 2020 makes education मादरी जुबान में, या आपकी मदर टंग में education more important. It makes it more holistic and also it makes it experiential. मुझे बेइंतहा खुशी हुई आज देखते हुए नीचे कि भाई बच्चे जो है वो experiential learning really जो है demonstrate करके दिखा रहे थे। तो वली साहब, congratulations for that. I am extremely happy that your initiative, again this initiative comes with great responsibility because you're not just fulfilling people over here. and एक बहुत I'll just tell you any funny thing, right? मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी कौम जो है एक जवाल की तरफ चल रही है पिछले 500 साल से। मैं आपसे बात कर रहा था इसके बारे में, आप समझिए ये बहुत सीरियस बात है। वी आर ऑन अ डिक्लाइन, वी आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। Muslim Ummah is on a decline from last 500 years. You know what is the reason for that? You know what is the reason for that? I'll just tell you one personal story, उसके बाद मैं I'll tell you the reason, right? One of the prime reason. तो personally when I became a registrar, जो पहली बार जो था, मैं जब डिग्री साइन कर रहा था एक बच्चे की, तो मेरे दिल में ख्याल आया, अरे भाई ये डिग्री का निजाम दुनिया को कौन दिए बोल के। Do you know who gave the निजाम ऑफ डिग्री देना किसी को? इसका निजाम दुनिया को कौन दिए? Any idea? Anybody knows? It was Fatima Al-Fahri from Morocco, right? So it was a Muslim. I said, man, I am part of great legacy. What degree she signed 900 years ago, I am signing. Alhamdulillah, I signed degrees of thousands of children. मेरे हाथ problem हो गया आजकल, मैं लिख नहीं पाता ज़्यादा, right? But when I look back, I say this is our legacy. This is what is a gift of Islam. आज के दिन कोई भी खड़ा होके बोल रहा है मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अरे भाई आपको ये लक़ब जो मिला, it is because of the teachings of Islam. It is because of the legacy of Fatima Al-Fahri. It is because of legacy which she got from the teachings of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and क्या बोलते हैं, अल्लाह के जो है नेक बंदे जो थे उस जमाने में, जो उन ममालिक पे काम किए थे, राइट? सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो आई जस्ट टेल यू, जो ये कौमी जवाल क्या हुआ था, सबसे पहले तातारियों के बारे में आपने सुना है, मंगोल्स। यू नो व्हाट दे डिड, राइट? उनका पहला हदफ ये नहीं था कि भाई हम जाके खलीफा को मार देंगे बोल के। उनका पहला हदफ, जब हलाको आया था, उसका पहला हदफ था कि भाई मैं हाउस ऑफ विजडम कैसा जलाना बोल के। बगदाद में जो था हाउस ऑफ विजडम, जहां पे बड़े बड़े जो है दुनिया में, आई मीन आज भी उनकी किताबें पढ़ी जाती, बहुत बड़े बड़े आलिम लोग, आई मीन दे आर लाइक साइंटिस्ट, दे वर एस्ट्रोनॉमर्स। उस जमाने में वहां पे एस्ट्रोनॉमी का एक लैब हुआ करता था। सो दे बर्न्ड द हाउस ऑफ विजडम, एवरी सिंगल बुक। उसके बाद हमारी कौम इकट्ठा हो नहीं पाई, राइट? सो आई जस्ट टेल यू, ये जवाल कहां से शुरू हुआ, वेयर डिड द डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम स्टार्ट, इज बिकॉज you have to dig Ottomans, right? You would have heard about the Ottoman. Allah gifted them one of the longest reigning dynasty, right? They started declining because they were hesitant to make printing technology legal. उन लोगों ने बैन कर दिए थे प्रिंटिंग। आज बोलो प्रिंटिंग बैन करे तो इल्म कहां से पहुंचता? One of the key reasons for decline of Ottoman, which is not spoken. बहुत सारे चीजें लोग बोलते हैं, अरे भाई उनके अखलाक ये नहीं थे, वो नहीं थे। अखलाक अलग बात है, फंडामेंटल्स कहाँ हैं? You are banning the core what do you say, knowledge system. So that is where we are. If we have to become the community जो थे अल्लाह ताला का वादा है हमारे लिए, if we have to become that community which is powerful, which is strong, हम लोग वापस से जो है we have to start adopting the knowledge system. Knowledge ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, भाई मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे मेरे को बहुत सारी चीजें बताते हैं। मैं लास्ट टाइम बताया था भाई साहब, मेरा बड़ा बच्चा जो है इज हार्डली अराउंड 7 year old, he'll come and tell me what is a good touch and what is a bad touch. कि भाई अम्मी अब्बा के अलावा कोई और मुझे किस नहीं कर सकता। मेरा बड़ा बच्चा मेरे को सिखा रहा,
बाबा दिस इज अ गुड टच, दिस इज अ बैड टच। देखिए हम बच्चों से सीखना पड़ेगा, बच्चों से भी सीखेंगे, स्कूल आके सीखना पड़ेगा, स्कूल से भी सीखेंगे, बट लेट अस ब्रिंग बैक दैट नॉलेज इकोनॉमी विच वी वर द मास्टर्स ऑफ। तो हमारी मुस्लिम उम्मा जो थी, वी वर द मास्टर्स ऑफ दैट नॉलेज इकोनॉमी। तो आई हैव नथिंग मच, आई मीन जब भी ब्रेन स्टार्स आता हूं तो आई मीन ये खुशी की बात क्या होती है कि भाई आई कैन कम्युनिकेट विद आवर पीपल एंड आई कैन एक्चुअली स्पीक माई हार्ट आउट। दैट्स व्हाई आई नेवर ब्रिंग एनीथिंग इन राइटिंग, राइट? सो आई ऑलवेज ट्राई टू से टेल दैट टू अली साहब। आई मीन रिसेंटली हमारी इस मामले में बात भी हो रही थी। आई सेड you know this initiative what you are taking, it is going to impact not just one family, it is going to impact the futures of the children. तो आप लोग भी एज पेरेंट्स देखिए, आई मीन बहुत कोशिश कीजिए सबसे पहले एक्चुअली यू नो इल्म लाना बच्चे के अंदर। तो घर के अंदर वो क्लीनलीनेस लेके आना, मोहल्ले के अंदर क्लीनलीनेस लेके आना। नहीं कि तो जो बच्चे बोल रहे थे नहीं आज हमारी हालत क्या है, हम लोग इसमें ही उसमें ही। अरे भाई हम मेरे जो थे आई मीन देखिए एक बहुत बड़ा सदमा भी है हमारे लिए। आई मीन आई एम स्टैंडिंग विद दैट। जो मेरे टीचर थे, आई मीन इनफैक्ट दो ऐसे मजबूत टीचर, वो दुनिया और यू नो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत एग्जाम्पल थे। एक आई लॉस्ट हिम लास्ट मंथ, शेख जुल्फिकार अहमद नजबंदी, मे अल्लाह गिव हिम ग्रांट हिम जन्नह। एंड ऑल्सो लास्ट दिस वीक वी लॉस्ट द अमीर शरीयत, ही वॉज माई पर्सनल टीचर। मेरा खुद निकाह के लिए हजरत आए थे कि बोले थे भाई नहीं, यू हैव टू गो एंड राइट IAS UPSC एग्जाम। हजरत फोर्स करे मुझे, Hazrat was like, नहीं जाके लिखो भाई देखेंगे। I went and wrote, I cleared in the first attempt, right, the prelims. Hazrat बहुत खुश हुए, he told everybody. I used to think if my father was alive, he would have told the same. Hazrat उस तरह खुश हुए थे कि भाई हमारी कौम में people who talk and tell the right thing are more important. I speak little too direct and I'm sorry if my words hurt you sometimes, but this is what we are. We are on a verge of decline. ये मत सोचिए कि भाई हम पढ़ा डालेंगे बच्चों को वो बहुत बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमें कौमी एतबार से टुगेदर इत्तेहाद बनाना है। We all have to gain that knowledge and इंशाल्लाह सक्सेस इज ऑलवेज ours, right? हमारे जो बच्चे आके अभी स्पीच दिए नहीं, मेरे से लाख गुना बेहतर वो स्पीच दिए, भाई बहुत खुशी हुई। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया उससे कि हमारे मुस्लिम यूथ के बारे में अल्लामा इकबाल से पूछा गया था कि व्हाट इज अ मुस्लिम यूथ। सो अल्लामा इकबाल यूज्ड टू से कि भाई नहीं तेरा नशे मन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों में। दैट इज व्हाट अ मुस्लिम यूथ इज, कि हर बच्चा जो है पहाड़ों की चट्टानों में, ही हैज द पावर एंड ही हैज दैट विरासत टू रीच हाइट्स। So on that note, I want to thank Allah and also thank the management over here for giving me this opportunity to speak. Jazakallah khair. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. Really, thanks to God for giving us a chance to this Surah. We're happy to share this. These are the wonderful chances for the parents to put the subject to their children. They happen very near. If you try this way of the subject, children are learning these things. The subject will help to hear and hereafter to be very happy. Like this, everywhere you can learn education. Which education is with tomorrow is very very helpful to live happy here and hereafter. It is very very support to the society as well as family development. So the parents must be utilize these courses as well as introducing the others. I hope, I pray for this like the subject of the schools spread everywhere and the public must be utilized. I pray for God, Allah subhanahu wa ta'ala, to give here and hereafter everybody to them. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you, sir, for motivating our audience with your wonderful words. Seed, full of promise, full of dreams. But a seed cannot grow on its own. It needs sunlight, water, care, and guidance. In the same way, every child blossoms through the combined efforts of the people who surround them. Today, we bring to you a short skit that shows how 3 pillars shape a child of a growth into a confident, responsible, and compassionate future leader. First, the parents, the child's very first teachers. Home, the child
for school. Father is reading Quran. In Islam, the home is the first madrasa. Parents are the child's earliest teachers who plant the seed of Iman, good manners, and gratitude. Ayan beta, before you leave, say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Remember, my child, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The best one amongst you are those who have the best manners." Speak gently, help others, and be honest with everything you do. Inshallah, Mama. Maths problem, but I couldn't get it right. Can you please help me out? It's okay, I don't remember keep trying. Let's work on it together. Teachers should decide finding heart and knowledge with patience. Lesson वो कौन थे जिनकी एक निगाह से पत्थर दिल इंसान बन गए? वो कौन थे जिनके चेहरे के मुंह से जुल्मतें मिट गई? वो थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। कभी भी फर्स्ट शाल डाल को बाद में हार डालना सो. Our chief guest of the day, Mr. Shazil Ahmad sir, and our special guest, Dr. Iftikhar Ahmad sir, and other dignitaries who are sitting here. A very good afternoon to you all. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear parents, I have few announcements to make here. Because there is no power, I want to reach this message to each and every one of you who are sitting here. As you are well aware that Brainy Stars, from the day of inception, we are going with Montessori methodology in our preschool segment, which is the most advanced education system till date. And we are committed to provide holistic education, which has been prioritized by the government of India recently in 2020 through National Education Policy of 2020, which we were practicing from the year 2013. Having said that, there are many schools which are providing talim. There is no scarcity for the schools which are providing talim. तालीम के इदारे तो इतने सारे हैं, अनगिनत इदारे हैं जो मुस्लिम मैनेजमेंट भी चला रही है, नॉन मुस्लिम मैनेजमेंट भी चला रही है. Then what is the benefit that you get in Brainy Stars? What is that Brainy Stars is providing to your kids and to your families? It is tarbiyat. We at Brainy Stars ensure to each and every child to get talim with tarbiyat. इधर ब्रेनी स्टार्स के अंदर क्या खूबियत है, क्या खासियत है बोले, ब्रेनी स्टार्स के अंदर तालीम भी दी जाती है, साथों साथ अपने बच्चों की तरबियत पे भी बहुत से ज्यादा जोर दिया जाता है. इन दिस जर्नी फ्रॉम द ईयर 2013 से लेते हुए आज तक हमारे पास टिल नाउ वी हैव 19 centers across India. This is the 20th center which has been inaugurated today in the Bismillah Nagar of Bangalore. And our chairman sir personally is on the mission with Brainy Edu Movement to propagate this mission to over 1,000 schools across India. तो इसके लिए हमारे जो चेयरमैन साहब थे पर्सनली रिसेंटली एक विजिट किया, इंटरनेशनल टूर थी उनकी,
जिसके अंदर चेयरमैन साहब ने जापान, मलेशिया एंड सिंगापुर को पर्सनली विजिट किए। उधर पे तकरीबन 20 डेज आपने स्पेंड किया। इसलिए स्पेंड किए 20 डेज जस्ट टू वैलिडेट वेदर वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग। जो ब्रेनी स्टार्स में हम लोग तालीम दे रहे हैं, ये तालीम की वैलिडिटी कितनी है? क्या हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं या गलत रास्ते में जा रहे हैं? कुछ सीखने के लिए उधर मौका है या नहीं है? तो बस इस चीज को स्टडी करने के लिए हमारे चेयरमैन साहब जापान, सिंगापुर एंड मलेशिया को गए थे। जी, आई थिंक आई एम लकी एनफ टू गेटिंग विद बेस्कॉम। इसके बारे में चेयरमैन साहब जब बात करेंगे, साहब दो बात इसके बारे में और ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ದಿನದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದೇಕೆ? ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಭಾಷೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಪರಂಪರೆಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳು ಅಕ್ಕ. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು? ಹೇಳಿದೆ ಅಕ್ಕ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂವಹನವೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ. ಅಕ್ಕ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಪಾಠಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನನಗೂ ಸಹ ಆದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜ, ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಓದುವ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಉಪಯೋಗದ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ